السلام علیکم ناظرین، نیوز 84 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ ہندوستان روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہیں کرے تو امریکہ ٹیرف میں اضافہ کر سکتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا خبردار۔ جی ایس ٹی ریاست کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، پیٹرول میں ایتھنول ملایا جا رہا ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، اکبر الدین اویسی کا اسمبلی میں خطاب۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ اکنامک یونیورسٹی قائم کریں، ڈگری کالجز میں نئے کورسز متعارف کیے جائیں، خانگی یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں، حکومت کو قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا مشورہ۔ دلی 2020 فسادات کے سلسلے میں 5 ملزمین کو ملی ضمانت، عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے اعلیٰ عدالت کا انکار۔ سمندر پرتاپ بحریہ میں شامل، خود انحصار ہندوستان کی ایک سمت مضبوط قدم، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں 490 نئے وینٹی لیٹرز کی فراہمی، نمس حیدرآباد کو 125 ملیں گے، اسمبلی میں وزیر صحت کا اعلان۔ میری لڑائی جائیداد کے لیے نہیں، عزت و احترام کی لڑائی ہے، کونسل میں خطاب کے دوران کے سی آر کی دختر کویتا جذباتی اور اشکبار۔ امریکہ کے میری لینڈ میں تلنگانہ کی خاتون کی لاش سابق عاشق کے اپارٹمنٹ سے برآمد۔ نیپال میں مسجد کو اور قرآن پاک کو نقصان پہنچائے جانے کا افسوسناک واقعہ، مقامی عوام میں خوف و دہشت۔ وینزویلا کے بعد امریکی صدر کی کولمبیا اور دوسرے ممالک کو بھی وارننگ، کہا ڈیلسی روڈریگز کا حشر میڈرڈ سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہندوستان روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرے تو امریکہ ہندوستان پر ٹیرف بڑھا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی یہ جانتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کی ستائش کی۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے تلنگانہ آج قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی ایس ٹی ترمیمی بل پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنی تشویش سے ایوان کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے مرکزی حکومت چل رہی ہے، لیکن ریاستی حکومت کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قائد مجلس نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر جی ایس ٹی سے کیا ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ ریاست کا ٹیکس حکومت کو جاتا ہے اور پھر حکومت اسے ریاست کو واپس کرتی ہے، لیکن تلنگانہ کو اس کا پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر انکشاف بھی کیا کہ ایک مرکزی وزیر کے بیٹے کی ایتھنال کی کمپنی ہے اور یہ ایتھنال پیٹرول میں ملایا جا رہا ہے، جس سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، اور یہ ہندوستان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تھینک یو اکبر الدین اویسی جی۔ Honorable panel speaker, sir. So the bill which has been brought and introduced by the government pertaining to GST, sir. Sir, I want to once again come on record and say that it was MIM party
which has opposed in total the GST, sir. Sir, now this bill has been brought. The reason is that few changes, few amendments have been made, and that has to be incorporated. Sir, if I maybe, or if I have to say, I would say this: the entire country, sir, the smaller states, economy has been ruined because of GST, sir. It is so unfortunate and sad. The proposal of GST was introduced, was thought and processed when the Congress government was there in Delhi, but when Mr. Chidambaram was the finance minister. It wasn't introduced then, sir. But later on, a very good name was given: One Nation, One Tax. Say, in the name and in the guise of One Nation, One Tax, smaller states or the states, developing states, started losing their revenues. सर, अगर आज तेलंगाना स्टेट अगर कर्जों में डूबा हुआ है तो उसकी वजह यह है, ये जीएसटी है सर. सर, नाउ ये जीएसटी का सबसे खतरनाक, आई वुड से मोस्ट डेंजरस थिंग व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन जीएसटी इज, सर, वॉट एवर टैक्सेस कम्स फ्रॉम द स्टेट्स, उसके बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है, and Government of India gives in return to the states, not on the collection that is being made. अब इसमें कैसा है सर कि for example उत्तर प्रदेश has a large number of population. I am earning, other states are earning, Telangana is earning, Andhra is earning, Karnataka is earning, but they are not getting what they are earning. They are getting less share because their population is less. UP is getting more, Bihar is getting more, all the states which have more population are getting more. So I really don't understand, sir, why was this GST? Sir, I would say that कि ये GST की वजह से the government of India is surviving, I would say, sir. If the GST wasn't there, it would have been very tough for government of India, sir. Sir, I have all the details, sir. Goods and service taxes, sir. ये इसमें कितना government of India को आ रहा है, कितना share is coming to the state of Telangana. Sir, I would say that, sir. Sir, the Telangana state government is currently, arguing that it is suffering significant revenue losses due to goods and service taxes structure and the recent rate rationalization by the state. Sir, these are not my figures, sir. The official from the state officials have claimed an accumulated losses of 80,000 crores in GST was introduced. He's speaking on that, sir. Sir, now if we have to see, sir, the lower growth rate, the state GST revenue has grown at a compound annual growth rate of only 10% up to 24-25 compared to 18% CAGR under the previous VAT system, sir. If I am wrong, I may be corrected, sir. The fiscal impact, the state government argues that without GST, Telangana would have earned substantially more tax revenues. In 24-25, the current shortfall impact essential services, welfare scheme, infrastructure projects. The state is experiencing a revenue deficit, sir. And sir, I was really surprised. Honorable Minister Saab should have spelled out all these things when he was introducing this bill, sir. Sir, we should demand for a compensation, sir. Sare GST, sir, only on liquor and petrol. Only on liquor and petrol is here. I was listening to my learned friend from BJP. He was giving an example of Maharashtra, sir. Maharashtra में diesel का ये price है, इसका है, ये सारी चीजें वो बोल रहे थे, sir. Yes, sir, I have, sir. I also have the details, sir.
But sir, the BJP people have not mentioned about methanol which is getting mixed, sir. Am I right or wrong, sir? ये मिथेनॉल मिथेनॉल जो 15% तक सर दे आर मिक्सिंग. एवरीबडी सेज दैट कि तेलंगाना में जीएसटी का टैक्स पेट्रोल डीजल पर ज्यादा है. ठीक है, ज्यादा है सर. मैं भी डिमांड करूंगा कि उसको कम करिए सर, ताकि इससे काफी सहूलत होगी. आंध्र प्रदेश में कितना है पूरा मेरे पास पूरे फिगर्स है सर, बिहार में कितना है, तेलंगाना में कितना है. मगर मिथेनॉल सर बहुत बड़े आदमी के बेटे की कंपनी है सर, बहुत बड़े आदमी है. अब मैं बोलना नहीं चाहता सर. उनके शेयर स्टार्ट हुए थे चंद लाख में, अब करोड़ में चले गए सर. हाँ सर, आप बताइए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है. वन नेशन वन टैक्स. अरे वन नेशन वन टैक्स में, अरे आज आप महंगाई, आई रिमेंबर सर जस्ट नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट a university being named in the name of the late Prime Minister Mr. Manmohan Singh Saab. Sir, I remember sir, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi Saab, once he said कि the dollar sir, डॉलर रुपया की कदर अगर देखते हैं तो 1 रुपी इज इक्विवेलेंट टू, जब उस वक्त कुछ 69, 70, 72 ऐसा हो गया, तो बोले कि रुपया जो है सो $1 रुपया मनमोहन सिंह साहब की उम्र से ज्यादा हो गया, बोले सर. जीएसटी पर मुबाहिस के दौरान बीजेपी के अरकान के एहतजाज और शोरगुल पर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जीएसटी के जरिए मरकजी हुकूमत तेलंगाना के हुकूक को सलब कर रही और रियासत की मईशत को कमजोर कर रही है. अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो इस तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हैं और उन्होंने कार्रवाई का वॉकआउट किया. రిప్లై ఇచ్చారు సార్, డిస్కషన్ రిప్లై ఇస్తారా? రిప్లై ఇచ్చారు సార్. Discussion is over. I request, the question is that the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2026 be taken into consideration. Those who are మాట్లాడండి. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మాట్లాడండి. మాట్లాడిన తర్వాత మీకు కూడా అవకాశం ఇస్తుంది. మాట్లాడండి. One point, sir. Honorable Speaker, sir. Sir, when the bill is getting passed, so if one member wants to protest, a right has been given. So I stand here protesting and opposing this bill. And I just want to lodge my protest by saying that GST has ruined the state economy. The government of India has snatched away the right and the money of the state government, and smaller states are suffering, sir. And Telangana state is not even getting 25%, and the government of India is mixing 15% of ethanol, and they are not even reducing 15% rate of the petrol, sir. So I think this bill is disastrous, sir, and the corrections which have been made कि आज slab system को कम करें, sir. कम करने का मतलब ये है कि they are accepting कि they were wrong.
So the amount which has been collected all these years because of the slab was wrong. I protest, sir, and I'm walking out from this bill, sir. We are not supporting this bill, sir. Thank you, sir. कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि लंदन ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तर्ज पर रियासत में डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स और मैनेजमेंट और कॉमर्स का क़याम अमल में लाया जाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह माहिर मुआशियात हैं और उनकी खिदमात को खिरात पेश करने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि उनके नाम से एक मौसूम यूनिवर्सिटी कायम की जाए। Honorable panel speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity, and through you, I thank the Honorable Minister Saab for giving a very good reply, sir. Sir, एक आखिरी चीज़ में बोलते हुए दरख्वास्त करते हुकूमत से बैठ जाऊंगा कि सर मनमोहन सिंह साहब लेट प्राइम मिनिस्टर के खिदमात को ये मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता कि वो जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की भी कैबिनेट में थे, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो मुल्क जो खुशहाली व तरक्की को देख रहा है वो उनकी दूरअंदेशी थी, जिसकी वजह से आज मुल्क में आज भी हम तरक्की देख रहे हैं। सर, मैं चाहूँगा और ये भी बतलाऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कैबिनेट में आने से पहले उनके नॉलेज और उनके मालूमात इतनी ज़्यादा थी, इतनी मशहूर थे वो कि हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में उनको बुलाकर वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी के जो फोरम्स होते थे उसमें उनको मदऊ किया जाता था, इनवाइट किया जाता था, उनसे लेक्चर्स लिए जाते थे और उनसे गाइडेंस भी लिया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी अपने मुल्क की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए उनको खास उनके मशवरे और खिदमात लिए थे। सर, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा, जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स LSE एक मशहूर यूनिवर्सिटी है लंदन की, वैसे ही शहर हैदराबाद में हम भी अगर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो मैं समझूंगा कि भरपूर खिराज होगा उनके खिदमात को, उनके कंट्रीब्यूशन को जो मुल्क में उन्होंने दिया है, क्योंकि उनकी फील्ड कॉमर्स थी, इकोनॉमिक्स था। तो हमको चाहिए कि एक ऐसी मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स या इन्वेस्टमेंट या मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी कह के अगर यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो ये भरपूर खिराज होगा उनको। शुक्रिया सर। थैंक यू। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज ऐवान असम्बली में डिग्री कॉलेजेस में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए कोर्सेज के फराहमी के अलावा खानगी यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। ऐवान असम्बली में कायदे मजलिस ने कहा कि हुकूमत ने खानगी यूनिवर्सिटी बिल को मंजूर किया, नई यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई, लेकिन नई यूनिवर्सिटीज़ में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ दस्तियाब नहीं है, तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कायदे मजलिस ने बताया कि बाज़ खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे कोर्स ऑफर किए गए हैं जिसे AITC की मंजूरी नहीं है। कोर्स की तकमील के बाद तलबा को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि डिग्री कॉलेजेस में वही पुराने कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, नए कोर्सेज मुतारिफ किए जाने चाहिए। कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने मुतालबा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ एक इजलास तलब किया जाए ताकि इन मसाइल पर गौर किया जा सके। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने निज़ामिया तिबी कॉलेज चार मीनार को दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का मुतालबा किया। आज असम्बली में मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल के लिए पहले 52 करोड़ और फिर 30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, लेकिन फंड्स जारी न होने से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह तारीखी हॉस्पिटल जहाँ यौमिया सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं, फौरी तवज्जो का तलबगार है। जुल्फ़िकार अली ने शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में बैरूनी रियासतों के शहरियों को इलाज से इनकार पर भी हुकूमतों को तवज्जो दिलाई और कहा कि हिंदुस्तान के शहरी हैं, उन्हें भी सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाए।
तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया है कि रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में 490 नए वेंटिलेटर्स फराहम किए जा रहे हैं और इससे वेंटिलेटर्स की तादाद रियासत में 1790 हो जाएगी। असेंबली में वजीर सेहत ने बताया कि निम्स हैदराबाद को 125 वेंटिलेटर्स के अलावा 850 का अमला फराहम किया जाएगा। 25 किलोमीटर के अहाते में डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। एम्बुलेंस की जानिब से कॉल करने पर 10 मिनट में मुकामी वाक़े पर रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। 89 एम्बुलेंस की नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। तेलंगाना की खातून वज़रा सीता कौर को नसरेखा ने समक्का सारलम्मा के पुजारियों के हमराह गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की। रियासती वज़रा ने मेदनम समक्का सारलम्मा महाजात्रा में शिरकत के लिए गवर्नर को दावतनामा दी और शालपोशी की। यात्रा के इंतजाम से मुतल्लिक भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के वेणुगोपाल ने कहा है कि केरला के अवाम टीवी जैन की हुकूमत से आजिज आ चुके हैं। वायनाड में मीडिया से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि सीपीआई फिर से इख्तिदार में वापस आना चाहती है, लेकिन अवाम ये इरादा कर चुके हैं कि बाएं बाजू हुकूमत को दोबारा इख्तिदार नहीं सौंपेंगे। दिल्ली के लाल किले के पास हुई धमाके के केस के सिलसिले में मुश्तबा मुलजिम यासिर अहमद डार को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। इससे पहले वो एनआईए की तहवील में था। सुप्रीम कोर्ट ने आज साल 2020 के दहली फसादात की साजिश केस में तालिब इल्म कारकुनों उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजमीन और दहली पुलिस के दलाइल सुनने के बाद 10 दिसंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस के दीगर मुलजमीन गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की मुसलसल कैद को भी गैर ज़रूरी करार देते हुए इनकी जमानत मंजूर कर ली। ये तमाम मुलजमीन 2020 के दहली फसादात में अपने मुबैना किरदार के लिए 5 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा दीगर मुलजिमान को रिहाई पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था। ये मुकदमा 2020 के फसादात के पीछे मुबैना बड़ी साजिश है से मुताल्लिक है, जो शहरियत तरमीमी एक्ट CAA और मुजवजा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के खिलाफ मुजाहरों के दरमियान फूट पड़ा, जिससे 53 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस ने मुलजिमीन की रिहाई की मुखालिफत में इंसदाद गैरकानूनी सरगर्मियां एक्ट UAPA की दफात का हवाला दिया है। शर्जील इमाम 28 जनवरी 2020 से जेल में हैं, जबकि उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में हैं। इमाम और खालिद ने सितंबर 2023 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें इल्जामात की संगीनी और मुबैना साजिश की संगीन नौयत का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। इस दौरान गुलफिशा के वकील सलीम जावेद ने कहा कि हमें खुशी है कि 5 लोगों को जमानत दी गई है और ये लोग 5.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को 1 साल के बाद दोबारा से जमानत की दरख्वास्त दाखिल करने की आज़ादी दी गई है। अदालत ने पुलिस को भी हिदायत दी कि तेजी के साथ इस केस पर कार्रवाई की जाएगी। 1 साल के अंदर गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के MP इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली 2020 फसादात से मुताल्लिक 5 मुलजमीन को दी गई जमानत उमर खालिद और शर्जील इमाम की दरख्वास्तों को मुस्तरद किए जाने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है कि जमानत एक बुनियादी हक है और यह किसी शख्स का बुनियादी हक है, तो इस पर गौर भी किया जाना चाहिए। नेपाल के धनुषा जिले में मस्जिद को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने के अलावा कुरान पाक की तौहीन का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बताया गया कि मुकामी मुसलमानों के मकानात पर भी हमले किए गए हैं। मुकामी अवाम का कहना था कि राजन शाह, कपिल शाह श्योम, कुमार शाह और महेंद्र महातोफ और उनके साथियों ने हमला किया है। कशीदगी को देखते हुए इलाके में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इस वाक़े को लेकर मुकामी मुसलमानों में बरहमी देखी जा रही है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गोवा के शिपयार्ड में ICGS
समुद्र प्रताप की कमीशनिंग तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस जहाज में इस्तेमाल हुई 60% अशिया मुकामी तौर पर तैयार की गई हैं। हिंदुस्तान के खुद पर इन्हिसार की सिमत एक मजबूत कदम है। वजीर दिफा ने कहा कि मेक इन इंडिया की पहल का सही मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट से वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है। आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच को अमृतसर के मेरेगोल्ड रिजॉर्ट में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सरपंच जरमल सिंह एक रिश्तेदार की शादी में शरीक था। वो एक मेज पर बैठा था जब इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। गैंगस्टर्स डोनीबाल, प्रभा दासवाल और देवेंद्र बॉम्बिया ने जिम्मेदारी कबूल की है। आम आदमी पार्टी के सरपंच को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत कर रहा था। फायरिंग से शादी में अफरा तफरी मच गई। अमृतसर में एक शादी में आम आदमी पार्टी के सरपंच को गोली मारने की सीसीटीवी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दो नौजवान शादी में शरीक थे और सरपंच को करीब से गोली मारी गई। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने आज तेलंगाना काउंसिल में खिताब करते हुए जज्बाती और अश्कबार हो गईं। उन्होंने कहा कि उन पर जायदाद को लेकर खानदान में झगड़े पैदा करने का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उनकी लड़ाई इज्जत और एहतराम के लिए है। वो अपने भगवान और 2 बच्चों की कसम खाती हैं कि उन्होंने जायदाद के लिए कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं किया, सिर्फ इज्जत के लिए वो जद्दोजहद कर रही हैं। कविता ने यह भी कहा कि उन्होंने खवातीन, किसानों और समाज के मुख्तलिफ तबकात के लिए मुसलसल काम किया है। तेलंगाना तहरीक में भी उनका रोल रहा है। कविता ने सदर नशीन कौंसिल से उनका इस्तीफा कबूल करने की दरख्वास्त की। कविता ने यह भी कहा कि पार्टी में जो बदनवानियां हुई उससे भी उन्हें पार्टी क़यादत को वाकिफ करवाया था। सेक्रेटेरिएट, अमरजीत अम्बेडकर स्टैच्यू और नए कलेक्ट्रेट के दफातर की तामीर के दौरान भी जो बदनवानियां हुई थीं उसे भी उन्होंने सामने लाया था। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी से उनकी अलहदगी को लेकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। बीआरएस से इस्तीफा दे चुकी रुकन काउंसिल के कविता ने कहा है कि उन्होंने आज फिर अपना इस्तीफा पेश किया और उन्हें उम्मीद है कि सदर नशीन उनका इस्तीफा कबूल करेंगे। कविता ने अपने दर्द को बयान करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी से उनकी मुअत्तली इंतहाई तकलीफदा और तौहीन आमेज थी। रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने रियासती असेंबली में बीवी रामजी कानून के खिलाफ लाई गई करारदाद की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को गलत मालूमात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर रामजी के नाम पर कांग्रेस को क्या तकलीफ है और क्यों उसकी मुखालिफत की जा रही है। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि मनरेगा स्कीम के तहत मरकज की तरफ से फराहम किए जा रहे फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी 125 दिन काम दे रही है। मनरेगा के फंड्स के साथ हेरफेर की गई। अगर मनरेगा में गांधी का नाम था तो बीवी रामजी में राम का नाम है, इसलिए कांग्रेस इसकी मुखालिफत कर रही है। रामचंद्र राव ने कहा कि अगर इसे तेलंगाना में नाफिज नहीं किया गया तो रियासत के अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। तेलंगाना असेंबली के पास वजीफायाब मुलाजिमीन की तरफ से एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। वजीफायाब मुलाजिमीन बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाजन असेंबली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मौके पर एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर द कैंपेन भी देखी गई। वजीफायाब मुलाजिमीन ज़ेर इल्तिवा गिरानी अलाउंस और दूसरे बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा कर रहे थे। फोन टैपिंग के केस में बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आला अदालत ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से हरीश राव के खिलाफ फोन टैपिंग मामले में तहकीकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बताया जा रहा है कि बीआरएस लीडर के खिलाफ नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के मलिकापुरम मंडल एरुसमंदा देहात में ओएनजीसी गैस के अखराज से सनसनी और अफरा तफरी देखी गई है। इंतजामिया ने गैस के मुबैना फैलाव के तनाजुर में करीबी 3 देहातों से अवाम की तखलिए की हिदायत दी है। कोहर की शक्ल में गैस फैलती हुई देखी गई। बताया गया कि मरम्मती काम के दौरान अचानक गैस का अखराज हुआ और मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। हंगामी टीमों को भी मुकामी वाक़े पर रवाना कर दिया गया है। अमेरिका के मैरीलैंड में तेलंगाना की 27 साला खातून की लाश उसके अपार्टमेंट्स दस्तयाब हुई है। मकतूला सिकंदराबाद की साकिन नकीता बोडशीला बताई गई हैं। वो अमेरिका में डाटा और स्ट्रेटजी एनालिसिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थीं। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को ये नकीता का कत्ल हुआ और इस वाक़े के बाद श्री अर्जुन शर्मा लापता बताया गया है। समझा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान फरार हो गया है। पुलिस ने नकीता की लाश को तहवील में ले लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। महलूक तालिबा के वालिद आनंद
बोधिशाला ने बताया कि निकिता के साथ उनके अपार्टमेंट में 4 लोग रहा करते थे। उसका साबिक साथी उसे पैसों के लिए हरासा किया करता था और जब उनकी बेटी ने रकम वापसी के लिए इसरार किया तो उसने उसका कत्ल किया और फिर हिंदुस्तान फरार हो गया। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि मफरूर बॉयफ्रेंड था। हैदराबाद के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के महाराजगंज के इलाके में हुए हमले में जख्मी नौजवान इलाज के दौरान जान पर न हो सका। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते को रवि नामी शख्स ने अपनी बीवी पूजा के आशिक अमित पर मोहलिक हथियार से हमला किया था। उससे उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो फौत हो गया। बताया जाता है कि रवि और पूजा की शादी 10 साल पहले हुई थी। इस दौरान पूजा की हुसैनी आलम के साकिन अमित से दोस्ती हो गई। रवि ने बीवी को अमित के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और इसे इन हरकतों से बाज आ जाने की ताकीद की थी। ताहम बीवी के ताल्लुकात जारी रहे तो उसने अमित को ही निशाना बनाया। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। तेलंगाना नारायणखेड़ जिले के बद्रुफ मंडल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली तालिबात एक गाड़ी पर लटकती हुई जाती नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि स्कूल वक्त पर पहुंचने के लिए तालिबात को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। मुकामी सरपरस्तों का कहना है कि स्कूल के औकात में बसों की अदम दस्तियाबी की वजह से तलबा को इस तरह जोखिम वाली गाड़ी पर सवार होना पड़ता है। हुकूमत से फौरी इस सिलसिले में मुतालबा किया गया है कि स्कूल के औकात में जायद बसें चलाई जाएं। हैदराबाद एनएमडीसी मोड़ के पास एक हेवी कंटेनर उलट जाने की वजह से 5 घंटों तक ट्रैफिक मुतासर रही। बताया जाता है कि 25 साला अहमद कंटेनर को चला रहा था। मोड़ पर कंटेनर उलट गया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक 5 घंटों तक मुतासर रही। आसिफ नगर पुलिस ने मुकामी वाक़े पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया। तेलंगाना गढ़वाल जिले गुट्टमंडल के माचरला देहात के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक शख्स की लाश पाई गई है। लाश के पास शराब की बोतलें भी थीं। शुबा है कि शराबनोशी के बाद इस शख्स का कत्ल किया गया। क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तान रूसी तेल के मामले पर ताउन नहीं करे तो अमेरिका टैरिफ में इजाफा कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया खबरदार। जीएसटी रियासत की मईशत को तबाह कर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आलूदगी बढ़ रही है। गाड़ियां खराब हो रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली में खिताब। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी कायम करें। डिग्री कॉलेजेस में नए कोर्सेज मुतारिफ किए जाएं। कानून की यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। हुकूमत को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का मशवरा। दिल्ली 2020 फसादात के सिलसिले में 5 मुलजिमीन को मिली जमानत। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से आला अदालत का इनकार। समुद्र प्रताप बहरिया में शामिल। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की सिमत एक मजबूत कदम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। रियासत तेलंगाना में 490 नए वेंटिलेटर्स की फराहमी। निम्स हैदराबाद को 125 मिलेंगे। असेंबली में वजीर सेहत का ऐलान। मेरी लड़ाई जायदाद के लिए नहीं, इज्जत और एहतराम की लड़ाई है। कौंसिल में खिताब के दौरान केसीआर की दुख्तर कविता जज्बाती और अश्कबार।
امریکہ کے میری لینڈ میں تلنگانہ کی خاتون کی لاش سابق عاشق کے اپارٹمنٹ سے برآمد۔ نیپال میں مسجد کو اور قرآن پاک کو نقصان پہنچائے جانے کا افسوسناک واقعہ، مقامی عوام میں خوف و دہشت۔ اور وینزویلا کے بعد امریکی صدر کی کولمبیا اور دوسرے ممالک کو بھی وارننگ، کہا ڈیلسی روڈریگز کا حشر میڈرڈ سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ناظرین سے کے ساتھ نیوز 84 کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔